ویلکم بیک۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت لاہور میں نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ملاقات میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی موجود ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ہے۔ صدر مملکت وسطی پنجاب کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ صوبوں کی شمولیت کے بغیر ترقی کا سفر مکمل نہیں ہوگا۔ نواز شریف نے خیبر پختونخوا کے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا خیبر پختونخوا پاکستان کا دل ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا۔ نون لیگی حکومت نے پھر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا پیڑا اٹھایا۔ شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے معیشت کو بحالی کے راستے پر ڈالا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے وزیر اعظم بلاول کے نعرے لگوا دیے۔ جھنگ میں جلسے سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا بلاول کو کسی کی منت کرنے کی نہیں ضرورت، وزیر اعظم بنانا ہے۔ اپنی ہمت، جوش اور دلیری سے بلاول بھٹو کو ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے۔ پیپلز پارٹی نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پر لٹکے تو اس کی وجہ ختم نبوت کا تحفظ تھا۔ وفاقی کابینہ میں بڑا اضافہ، 24 نئے وزیروں نے حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے حنیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر، رضا حیات ہراج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ، جنید انور اور خالد مقصی سے وفاقی وزیر کا حلف لیا۔ ملک رشید، کھیل داس کوہستانی، طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک، عبدالرحمان کانجو، بلال اظہر کیانی، مختار بھرت، اون چودھری اور وجیہہ قمر نے وزیر مملکت کا حلف اٹھایا۔ پرویز خٹک، محمد علی اور توقیر حسین شاہ وزیر اعظم کے مشیر مقرر۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا تینوں کا منصب وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ ہارون اختر، حذیفہ رحمان، مبارک زیب اور طلحہ برکی معاون خصوصی ہوں گے۔ ابوظبی کے ولی عہد شیخ خالد ال نہان کا دورہ پاکستان، مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ معزز مہمان کو نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ پاکستان کی خود مختاری چیلنج کرنے والوں کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ عرض وطن کو بری نظر سے دیکھنے والے کو 27 فروری 2019 سے بڑا جواب دیں گے۔ بھارتی پائلٹ ابھینندن کا طیارہ مار گرانے والے ایئر کوموڈور نعمان علی خان کی پروگرام آف دا ریکارڈ میں خصوصی گفتگو۔ بتایا پاکستان کی مسلح افواج ہر طرح کی روایتی اور غیر روایتی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ فضل و کرم اور مدد و نصرت تھی کہ جس نے ہمیں 27 فروری 2019 کا دن دیکھنا نصیب کیا۔ پاکستان کی آرم فورسز ہمیشہ سے تیار تھی کسی بھی قسم کی جنگ کے لیے، چاہے وہ روایتی ہو، چاہے وہ غیر روایتی ہو، چاہے وہ فرسٹ جنریشن ہو، چاہے وہ 6th جنریشن ہو، ہم تیار۔ اور انشاءاللہ جب بھی اس مادر ملت پہ کسی نے بھی میلی نگاہ سے دیکھا تو انشاءاللہ 27 فروری 2019 سے بھی بڑا جواب دیا جائے۔ جو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جس نے یہ ڈیسیژن لیا کہ کرنا ہے، تو آئی ڈونٹ نو ویئر دی ریشنلٹی was. How can you go and try to do some adventure with a nuclear state? If at all آپ نے پلان کر ہی لیا تو ٹیکٹیکل لیول پہ دیکھیں تو اگین دے پھر کسی بھی جب آپ سوورن اسٹیٹ لائک پاکستان کو چیلنج کریں گے تو not to respond is not an option. Any aggression has to be responded. بات کریں گے موسم کے حوالے سے۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے سے جاتی سردی لوٹ آئی ہے۔ جھنگ، ساہیوال، شیخوپورہ، جڑاوالا، ڈسکا، موسن والا میں وقفے وقفے سے بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی کبھی ہلکی کبھی تیز بارش سے موسم سہانا ہو گیا ہے۔ کوئٹہ اور پنجگور سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نتھیا گلی، ایبٹ آباد اور مانسہرہ سمیت بالائی علاقوں میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں کہیں بارش تو کہیں برف باری کی پیش گوئی کی ہے۔ لاہور میں گزشتہ روز شروع ہونے والی بارش وقفے وقفے سے جاری ہے۔ بارش کے باعث موسم سرد ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج مزید بارش کا امکان ہے۔ موسم کا احوال جانتے اپنے نمائندے یار محمد سے۔ بتائیے گا یار محمد۔ بالکل جی، لاہور شہر میں گزشتہ روز ہونے والی بارش وقفے وقفے سے الگ صبح تک جاری رہی۔ اس وقت بھی شہر کا موسم خاصا سخانا ہے اور سردی کی شدت جو ہے وہ ایک بار دوبارہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج شام مزید بارش کا امکان ہے جو کل صبح تک
वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज तमाम दिन मौसम खूबसूरत रहेगा, दर्जा हरारत में कमी रहेगी और लाहौरी जो हैं वो इस मौसम को इंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी। और महकमा मौसमियात ने आज कराची में मतला बरालूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने आज शहर में हल्की बारिश की पेशगोई की है। मौसम की अपडेट लेते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। बिल्कुल, कराची शहर में सुबह से ही तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कराची शहर का मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर में आज शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। दिन भर जो मौसम है वो अबर आलूद रहेगा और समंदरी हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। कराची शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 74% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी। कराची में रात गए 2 मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाम बहक हो गए। पहला हादसा शारिया फैसल नर्सरी के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद जान से गए। मोटरसाइकिल सवार एक शख्स ऑनलाइन राइडर था, जिसकी शनाख्त शकील हैदर के नाम से हुई। दूसरा हादसा नुमाइश चरंगी के करीब हुआ, जहां 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम के नतीजे में एक शख्स जाम बहक और एक जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 62 अफराद की जानिब से हवाई फायरिंग और शहरियों पर तशद्दुद के वाक़यात थम न सके। गुज़श्ता हफ्ते क्लिफ्टन बोर्ड बेसिन के इलाके में शहरियों पर तशद्दुद की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में कार सवार को दूसरी गाड़ी को टक्कर मारते देखा जा सकता है। टक्कर मारने के बाद कार से 6 से 7 मुसल्लह अफराद ने गाड़ी में बैठे हुए 2 अफराद को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने 19 फरवरी के वाक़े का मुकदमा मुतासर शहरी बरकत अली सोमरू की मुद्दयत में थाना बोर्ड बेसिन में दर्ज कर लिया। मुद्दई के मुताबिक सादा लिबास अफराद ने खुलेआम असलहे के जोर पर तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे सर पर शदीद नौयत के जख्म आए। तशद्दुद करने वाले अफराद नशे में थे। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में मुतासर शहरी ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला से वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। मैं अपने दोस्त के साथ खाना खा के फूड स्ट्रीट से उठा बोर्ड बेसन से, तो मैंने देखा कि 50 मीटर से झूलती हुई एक गाड़ी आ रही है हॉर्न देते हुई। तो मैंने साइड की, उनको रास्ता दिया, लेकिन उन्होंने गालियां देते हुए क्रॉस किया। जब वो आगे गए तो फिर आके रिवर्स करके हिट किया मुझे, मेरी गाड़ी को। और उसके बाद उतने वो बहुत सारे लोग थे, 4 गाड़ियां थी उनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी। आए, हिट किया, तशद्दुद किया, मुझे बट मारे, मैं खूनम खून था, लेकिन वो फिर भी मारते जा रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है। तो जदीद असला था उनके पास, पर बस वो मारते जा रहे हैं। फिर उसके बाद वो सुकून से गए। कोई इदारा, मैंने 15 पे कॉल की, कोई इदारा जो है कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई। अभी जो है 2 दिन लगे मुझे FIR कटवाने में, 9 दिन गुजर गए। आज जो मीडिया पे उठा है तो उसके बाद जो है पुलिस हरकत में आई है, DIG साहब राब्ते में, SP साहब राब्ते में, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। कराची में बोर्ड बेसन पर तशद्दुद के वाक़े में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, शहर के लोगों को किसके रहमो करम पर छोड़ दिया है। पीपल्स पार्टी अपनी नाकामी कबूल क्यों नहीं कर लेती, जबकि तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं उन्हें वाक़े का इल्म नहीं था। अगर पुलिस की गफलत है तो कार्रवाई की जाएगी। शहर में बंदूक कल्चर मुतारिफ कराने वाले हमें लेक्चर ना दें। कर रही है हुकूमत, किस चीज का नाम है, लोगों को किस चीज के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है कि जो चाहे जब चाहे असला निकाले, बदमाशी शुरू कर दे। डिफेंस के इलाके में किस तरह लोग तक मुंशियात पहुंच रही है, असला घरों में छुपाया हुआ है। हुक्मरानों ने, पुलिस ने आंखें बंद कर रखी हैं। अपनी नाकामी क्यों कबूल नहीं कर लेती पीपल्स पार्टी? मुझे तो इस मामले का बिल्कुल इल्म नहीं था। अगर ये 19 को हुआ है और पुलिस ने नेग्लिजेंस की है, एक्शन नहीं किया है, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ एक्शन होगा। होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में आ चुका है, सिंध में कहीं भी खुलेआम असलहा लेके चलने की इजाजत नहीं है। कराची में 144 का निफाज भी हुआ है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि कराची क्राइम फ्री सिटी है। हर बड़े शहर में क्राइम रिपोर्ट होते हैं। शहर में बंदूक का कल्चर इंट्रोड्यूस करने वाले हमें लेक्चर दें। कराची यूनिवर्सिटी में आज भी जो जमात की तलबा तंजीमें करती हैं वो हम सबको पता है। फारूक सत्तार और शर्जील मेमन में जुबानी गोलाबारी।
MQM रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आला हाउस हमारी एक कॉल की मार है, वज़ीर आला 25 अरब का हिसाब दें। शर्जील मेमन ने जवाबी वार किए, कहा फारूक सत्तार और उनकी जमात का कोई वजूद नहीं, जो कानून हाथ में लेगा पकड़ा जाएगा। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चांद की रोयत के लिए तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में इजलास होंगे। इस्लामाबाद में भी जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर में होगा। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर शाह कहते हैं मौसमियाती तब्दीली संगीन चैलेंज बन चुकी है। हुकूमत को $1 मिलियन की सरमायाकारी मिलने के बाद अर्बन फॉरेस्ट और ग्रीन एनर्जी की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सिंध में सोलर सिस्टम को मरहलावार स्कूलों और कॉलेजेस में नस्ब किया जाएगा। बिजली की तकसीम कार कंपनियों को कहा है कि रमजान में लोड शेडिंग न की जाए। अनवर खान की रिपोर्ट। कराची IBA यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम और आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड समेत डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ताउन से मौसमियाती तब्दीलियों पर ग्रीन माइंड्स और ग्रीन स्कूल के उन्वान से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। तलबा की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के हवाले से पेश की गई तजावीज़ को सूबाई वजीर ने काबिल अमल करार दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं सोलर सिस्टम को मरहलावार स्कूलों और कॉलेजों में नस्ब किया जाएगा। बहुत सारी एजुकेशन की इमारतें जो हैं वो ऑलरेडी सोलराइज हुई हैं, दूसरे फेज़ में दीगर स्कूल हैं, तो ये एक प्रोसेस है जो चलेगा, एकदम तो सब नहीं हो सकता। एडिशनल डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल रफिया जावेद का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद स्कूल के तलबा को मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आगाही फराहम करना है। सर्दी से अचानक गर्मी आ गई, बहार का मौसम बीच से गायब हो गया। इसी तरह जो हम कहते हैं स्प्रिंग ख़त्म हो गया, ऑटम भी नहीं आएगा, तो दो एक्सट्रीम वेदर होंगी। तो हम किस तरह सस्टेन करें कि अपने 4 मौसम को बैलेंस करें और उनको जिस तरह चलती हुई आई हैं वो भी चलें। क्या हल है, क्या रेमेडी है, तो बच्चों के पास क्या इनोवेटिव नए आइडियाज हैं। कॉन्फ्रेंस में निजी स्कूलों के तलबा और साथीज़ा ने शिरकत की, जबकि कॉन्फ्रेंस में तलबा की जानिब से मौसमियाती तब्दीलियों से महफूज रहने के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई। कैमरामैन याकूब बिल्ती के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। रमजानुल मुबारक की आमद करीब ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से मुस्तकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया। पहले रोज ही सैकड़ों राशन बैग तकसीम कर दिए गए। कराची से अली हसन की रिपोर्ट। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन की तकसीम का सिलसिला बरकरार। रहमतों और बरकतों के माह मुबारक से पहले जरूरतमंदों को उनका हक मिलने लगा। इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर राशन तकसीम किया जा रहा है। मुख्तलिफ लोकेशन पे इसी तरीके से राशन डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत सारे हमने पॉइंट्स हमने सिलेक्ट किए हैं जहाँ गरीब आबादी है, एक अच्छी आबादी है। मशरूबात और खजूर के साथ राशन बैग्स में जरूरत की तमाम अशिया मौजूद हैं। बहुत मुश्किल जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह पाक इनको, हाजी मोहम्मद साहब को जिंदगी दे। उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, हमारा महीने का राशन बांधा। ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो गरीबों को मदद कर रहे हैं, हर चीज़ में मदद करते हैं, जेज वगैरह में मदद करते हैं। जो गरीब हो उनका महीना राशन भी चालू करते देते हैं। KGN की जानिब से माह रमजान के आखिरी रोजे तक राशन तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज़, कराची। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से बेवा और मुतालिका देही खवातीन को अपनी कफालत के लिए मुफ्त मवेशी फराहम कर दिए गए। इस हवाले से गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में तकरीब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। हुकूमत की जानिब से बेवा और मुतलका दही खवातीन में अपनी कफालत के लिए मवेशी तकसीम करने की तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर ज़राअत और लाइव स्टॉक आशिक हुसैन करमानी थे। इनके अलावा तकरीब में सूबाई अराकीन पार्लियामेंट, जिले इंतजामिया, मवेशी लेने के लिए आई खवातीन और सहाफियों ने शिरकत की। सूबाई वजीर आशिक हुसैन करमानी ने मुस्तहिक 200 बेवा और मुतलका खवातीन में मवेशी तकसीम किए। जो चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव था रूरल एसेट ट्रांसफर का, तमाम मुतलका और बेवा खवातीन के लिए जो एक PMT स्कोर से नीचे फॉल करती थी, उनकी अभी तक कोई तकरीबन 1500 जानवर की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है और आज खानेवाल में पहला हिस्सा कर दिया है। अब परसों दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन होगी 200 जानवरों की, 200 की आज होगी, 200 की परसों कबीरवाला में होगी। तो ये इसका मकसद ये है कि वो तमाम खवातीन जो एक पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिनका रोज़गार कमाने वाला कोई नहीं है, तो वो हालात से किसी तरीके से भी मजबूर ना हो। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से गरीब खवातीन में इनकी कफालत के लिए मवेशी तकसीम करने के इक़दाम को शहरियों ने खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल।
ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया डू और डाई मैच में आज टकराएंगे। कजाफी स्टेडियम में शेड्यूल मुकाबला बारिश से मुतासर होने का खदशा। मैच ना हो सका तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से तकरीबन बाहर हो जाएगा। मुकाबला डू और डाई, जो जीता मिलेगी सेमीफाइनल में रसाई। कजाफी स्टेडियम में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच क्वार्टर फाइनल बन गया। दोनों टीमों ने 2-2 मैच खेलकर 1-1 कामयाबी दर्ज की। अफगानिस्तान को प्रोटियाज से शिकस्त मिली मगर इंग्लैंड को पछाड़ दिया। कैंगरूज ने अपने इफ्तिताई मैच में इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड हदफ हासिल किया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच बारिश की नजर हुआ। बाहमी मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया नाकाबिले शिकस्त चारों पार अफगानिस्तान को चित किया। जो टीम जीती नॉकआउट मरहले में पहुंच जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अफसोसनाक अंजाम, ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में कोई मैच न जीत सके। रावलपिंडी में बांग्लादेश से मैच बारिश की नजर हो गया। शाहीनों का पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर रहा। और भारत ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में तीसरी बार ग्रुप में आखिरी नंबर पर फिनिश किया। दूसरी बार टीम एक मैच भी न जीत सकी। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने मुस्तकबिल के लिए कौम से वादे कर लिए। रिजवान ने कहा कि ट्राई सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी की गलतियों से सीखेंगे। न्यूजीलैंड में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। Last couple of weeks not good. We thought we will play and inshallah we perform well in the front of our nation because expectation from the nation is highly. We can learn from the mistake what we did in the last couple of weeks like in tri-series and this big events. Hopefully we can do work on these and next we're going to New Zealand and hopefully we perform there and we'll do better in New Zealand. If you compare Pakistan with the world teams, lots of thing in awareness, professionalism we need for that. This is finished for us and requesting for the nation as well. Look, we accept that like we didn't perform well. तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का दावा कई साल से सुन रहे हैं, देखी नहीं, मगर पैराशूट से खिलाड़ी आते जरूर देखे। स्टार क्रिकेटर बासित अली का हरलमा पुरजोश में इज़हार ख्याल, कहा कप्तान रिजवान ने कौम के सामने अपनी हार को तस्लीम किया। कामरान अकमल बोले बाबर आजम, रिजवान और शाहीन आफरीदी को अब T20 नहीं खेलना चाहिए, उन्हें टेस्ट क्रिकेट खिलाई जाए। अदाकारा अरीज चौधरी बनी मेहमान। मुस्तफ़ा चौधरी ने रूपदारा जावेद मियां दाद का आदि के साथ मिलकर खूब कह कहे बिखेरे। भरपूर तालियां अरीज चौधरी के लिए, बहुत सारी तालियां हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा देर कर देता हूँ, T20 हो, वर्ल्ड कप हो, टेस्ट मैच हो, हमेशा जीतने में देर कर देता हूँ। अच्छा, 88 में मैं अंडर 19 का वर्ल्ड कप, यूथ वर्ल्ड कप खेला था। अच्छा, जब से मैं ये सुन रहा हूँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, देखा कभी नहीं। शॉर्ट टर्म का पूछे तो पैराशूट के जरिए जो प्लेयर आ जाते ना, लेकिन लॉन्ग टर्म की कोई कहानी, लॉन्ग टर्म कोई है ही नहीं। दो तीन प्लेयर है ना, जैसे लाइक बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, इनको T20 से बिल्कुल साइड पे कर दें। टेस्ट मैचेस के लिए इनको कहें आप तैयारी करें, टेस्ट मैचेस खेलें। वनडे टीम भी उस वक्त ये आए जब टॉप की 4 टीमें आए और हम लोग बाहर टूर करें। अब वक्त आ गया कि रेड बॉल के और ओडीआई टेस्ट और ओडीआई करीब करीब फॉर्मेट है, उसके आपको अलग क्रिकेटर रखने होंगे और T20 के बिल्कुल टोटली अलग क्रिकेटर रखने पड़ेंगे। इनमें से कौन से लड़के नए हैं? क्या बाबर नया है, क्या रिजवान नया है, क्या शाहीन नया है, क्या नसीम नया है? मतलब ये कहाँ से कौन से नए लड़के हो गए? क्रॉस द बॉर्डर जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स हैं अपने ही ये कर रहे हैं, अपने ही बुरा कर रहे हैं। बाबर भी तो इंसान है और ये अब ये एक नई कैंपेन शुरू। इंडस्ट्री में मुझे एक से बढ़कर एक डैश मिला है, एक से बढ़ के एक एक्सपेरिमेंट मिला है। थोड़े से पैसों की खातिर हमें छोड़ के क्या हो गया भाई? अच्छा, क्रिकेट की बात, कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान? ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक अफगानिस्तान। रावलपिंडी से आपको खबर देंगे, जहां चकबेली रोड कोटला मोड़ के करीब ट्रक और कार में तसादम हुआ। हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जान बहक हो गए। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा बाबर। जी, ये थाना रवात का इलाका है, चकबेली रोड कोटला मोड़ के करीब एक खौफनाक हादसा बारिश और के बाइस जो है तेज रफ्तार कार जो है वो ट्रक के आमने सामने से टकराई। रात गए ये हादसा हुआ है जिसमें कार में सवार 2 खवातीन समेत
4 افراد جو ہیں موقع پر جاں ہوئے ہیں. جاں افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں. پولیس اور جو ٹرک ڈرائیور تھا وہ ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گیا. مقامی پولیس جو ہے وہ موقع پر پہنچ گئی ہے اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی سے آپ کو خبر دیں گے، گلشن معمار میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی واردات اور ملزمان نے گھر کے باہر کھڑے شہری سمیت متعدد افراد کو لوٹ لیا. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا نذیر. دیکھیں 26 فروری کو گلشن معمار کے علاقے میں واردات ہوئی جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج اب سامنے آ گئی ہے. موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان تھے جس میں ایک نے پینٹ شرٹ ایک نے شلوار قمیض پہنا ہوا تھا. وہ موٹر سائیکل سے اترے اور پہلے ایک دکان میں گئے، اس پہ لوٹ مار کی. اس کے بعد گھر کے باہر 2 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے بھی جاتے جاتے ایک سے موبائل فون چھینا. جو متاثرہ نوجوان عفان ہے اس کا کہنا ہے کہ ان ملزمان نے 7 سے 8 افراد سے موبائل فون چھینے اور ملزمان کی اس واردات سے متعلق پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے. ملزمان نے اطمینان سے اپنی واردات انجام دی اور فرار ہو گئے. سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ملزمان کو واردات کے بعد فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. یونیورسٹی آف ہری پور میں انسداد منشیات کے حوالے سے خصوصی تقریب منعقد کی گئی اور تقریب کے شرکاء کو منشیات کے مضر اثرات اور اس سے بچاؤ کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی. ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس میجر جنرل عبد المعید تقریب کے مہمان خصوصی تھے. تقریب میں بڑی تعداد میں فیکلٹی، سول حکام سمیت طلبہ و طالبات نے شرکت کی. مہمان خصوصی نے شرکاء سے انسداد منشیات کے متعلق غیر رسمی گفتگو کی اور ان کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے. مہمان خصوصی نے فیکلٹی اور طلبہ و طالبات کو انسداد منشیات مہم میں حصہ لینے اور منشیات فروشوں کی نشاندہی پر زور دیا. نیمز یونیورسٹی کا پہلا کانووکیشن، نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا پہلا کانووکیشن راولپنڈی میں منعقد ہوا. کانووکیشن میں بیچلرز، ماسٹرز اور ڈائریکٹریٹ کی ڈگریاں طلبہ کو تفویض کی گئیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سعید محمد عمران مجید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. نیمز کے ہونہار طلبہ کو گولڈ میڈلز بھی دیے گئے. مختلف شعبوں کے طلبہ نے اپنی ڈگریاں حاصل کی اور بے حد خوشی کا اظہار کیا. وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ وسیم عالمگیر نے فارغ التحصیل طلبہ اور والدین کو مبارکباد دی. گورنر ہاؤس میں خواتین کو بااختیار بنانے اور مختلف شعبہ ہائے زندگی میں خود کو منوانے والی خواتین کے اعزاز میں 15ویں لیڈیز فن ویمن ایوارڈز کا اہتمام کیا گیا. رافع حسین کی رپورٹ. ہاؤس کے سبزہ زار لان میں مختلف شعبہ ہائے زندگی میں خود کو منوانے والی خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 15ویں ویمن ایوارڈز کا انعقاد کیا گیا، جس میں گورنر سندھ کی جانب سے خواتین کی خود مختاری اور ویمن امپاورمنٹ کے عزم کا احاطہ کیا گیا. تقریب میں خواتین نے اپنے ہاتھوں سے بنائی اشیاء بھی ڈسپلے کی. گورنر سندھ کی جانب سے ان کی مشیر نے پیغام دیا کہ مضبوط خواتین مستحکم پاکستان کی ضامن ہیں. خواتین کی معاشی خود مختاری خوشحالی گورنر سندھ کا ویژن ہے. گورنر ہاؤس کمٹمنٹ to recognizing and celebrating the achievements of extraordinary women. We may all continue working towards a future where every individual has the opportunity to thrive and contribute to society. تقریب میں خواتین نے گورنر انیشیٹو کو خواتین کو آگے لانے اور مساوی حقوق کی فراہمی میں اہم سنگ میل قرار دیا. This is not just a token woman power. This is globally ambitious, incredible women who are affecting the economy. That Pakistani women are incredible by global standards, by any standards, and who are they? They are you. تقریب کے اختتام پر کامیاب خواتین میں ایوارڈز اور شیلڈ بھی تقسیم کی گئیں. کیمرامین مصطفیٰ مراج کے ساتھ رافع حسین، AR1 نیوز کراچی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR1 نیوز.